program from Mathura. Okay, so Gujarat, then entire Maharashtra, then UP. Okay, so there are good participants, and today's topic is very important and very interesting also. Very interesting also. बिकॉज धम्म देशना हमने इसके पहले सुनी है, बाकी ये थोड़ा नया टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो आज भंते जी डॉक्टर आनंदा जी इस विषय पे हमसे रूबरू होने वाले हैं। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, प्रोग्राम की हम शुरुआत कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं अपना परिचय मैं देना चाहता हूँ। आई एम जागेश सोमकुवर, आई एम जनरल मैनेजर प्रोडक्शन इन ओएनजीसी मुंबई, and also I am chairman of All India SC/ST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai branch. So we are conducting a host of programs since last August on various issues like topics like education, like concepts of Baba Saheb, concepts of Dhamma, and many learned faculties. They have joined this program and enlightened the audience on the various aspects of the Buddhism and Ambedkarism, and also education. Our education, पहला मंत्र बाबा साहब का जो है एजुकेशन, शिक्षा। तो फॉरेन स्टूडेंट्स जो फॉरेन पढ़ाई करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। हम लोगों ने जो आईएएस टॉपर है इंडिया की 2014 मिस टीना डाबी, उनको भी हमने इनवाइट किया था। उनका भी एक बहुत अच्छा सेशन हुआ जिसमें उन्होंने सिविल सर्विसेज के बारे में उन्होंने गाइड किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, बिकॉज शी इज द टॉपर ऑफ दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। छोटे बच्चों के लिए भी हमने अबैकस, स्पेल बी, ओलंपियाड एग्जाम कैसे होती है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू से, आई एम वेरी ऑनर्ड टू से दैट मेरी मेरी जो डॉटर है पूर्वी, जो अभी आईआईटी फर्स्ट ईयर में है, बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर में है केमिकल ब्रांच में, उसने ये 3 दिन कंटिन्यू सेशन लिए थे, जिससे बच्चों को काफ़ी उसमें जानकारी मिली ये ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में। क्योंकि सिर्फ स्टडी जो सिलेबस है उसी को पढ़ के फ़ायदा नहीं है, आवर पर्सनालिटी शुड बी ऑलराउंड, ऑलराउंड हमारा विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये भी हमने सेशन किया था। डॉक्टर थोरात, प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात साहब को हमने बुलाया था, और भी बड़े बड़े भंते विमल कीर्ति गुणेश्वरी जी, उनको हम कई अगस्त से हम लोग सुन रहे हैं धम्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में। या तो ये सारे विषय के ऊपर हमने प्रोग्राम किए हैं, और आज का जो विषय स्पेशल जो सेशन हम लोग आज कर रहे हैं वो रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रोडक्शन टू रिलेशनशिप बिटवीन बुद्धिज्म एंड साइंस। मैं सबसे पहले भंते जी का ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन आप सबके लिए मैं देना चाहता हूँ। भंते जी, जैसे मैंने कहा कि वेनरेबल बिक्कू डॉक्टर आनंदा, he has done MSc and PhD. Positions held earlier, he was professor of chemistry and former director of research, Milind College of Science, Aurangabad, founded by none other than our emancipator, Dr. Baba Saheb Ambedkar. His education is BSc, as I told you, from Milind College of Science, Aurangabad, then MSc in organic chemistry, PhD in biochemistry from Dr. Ambedkar Marathwada University. He's well versed with Marathi, Hindi, English, and Pali. Okay, and he was ordained as Buddhist monk on in 2000 March 2011 in Thailand. Okay, so here Bhanteji has delivered special lectures on Dhamma, like meditation and quantum state of the brain. It was presented before Professor Chandrasekhar, a Nobel laureate, no? And beyond Einstein and relativity, theory of relativity in Buddhism. This is very interesting topic. Then dynamics of mind, matter and meditation, philosophy of Buddha, and Bertrand Russell, Boole, and Buddha. He was recognized as postgraduate teacher in chemistry, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. Banteji has visited several different countries for lectures, research, and conferences.
The countries include Thailand, Singapore, Japan, UK, Royal Society of Chemistry, London, Sri Lanka, Nepal, Germany, and many other countries. So this was brief about Banteji's, introduction. Okay, and Banteji has also wrote many books like Dr. Babasaheb Ambedkaranchi Dhamma Drushti in Marathi. Dr. Babasaheb Ambedkaranchi Dhamma Drushti. uh, One book or paper I am really do not know, but it is there, the Buddha mathematical model of quantum consciousness. Yeah, and it was co-written by Bhikkhuni Sasana Deepika Khanti Khema, USA. And his third book, Dr. Basa Ambedkar, The Buddha and His Dhamma, or Scientific Analysis. So Banteji is present a director of International Buddhist Meditation Vihara and Research Center, Aurangabad. So, with this brief introduction of Banteji, today's our learned, venerable Dr. Ananda Bante, we start this program. And all on behalf of everybody, my team in OGC Mumbai, CST Association, and everybody, all participants. So let us welcome with a big round of applause. Let us have some applause for welcome. Let us welcome Banteji with a round of applause. And before we start the program, before Banteji delivers his lecture, no, in today. So let us have Banteji, आज आपण त्रिशरण आणि पंचशील घेऊया. हम्म. हो 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 चालेल चालेल. या वानखडे मॅडम, तुम्ही रेडी आहेत का? वानखडे साहेब. ओके, याचना करा आधी सुरुवातीला. यू कॅन स्टार्ट युअर व्हिडिओ. आधी याचना करूया. बनतेजी आपल्याला त्रिशरण पंचशील देतील आणि नंतर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, राईट? या प्लीज. Those who are not speaking, they should keep their mic muted. Yeah, those who are not speaking, they should keep their mics muted. Yeah, disturbance व्हायला नको. Yeah, okay. अनिता मैडम फ्रॉम अनिता वानखेड़े मैडम फ्रॉम अहमदाबाद याचना करतील, और उसके बाद में हम त्रिशरम पंचशील सामूहिक रूप से ग्रहण करेंगे, और उसके बाद में भंते जी की हम देशना सुनेंगे. या गो एड मैडम. हाँ, एक मिनट. ओके ओके, टेक योर टाइम, डोंट वरी. या टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. अंधार पडत आहे का? हाँ, थोड़ा आता ठीक है. या इट्स ओके नाउ. या हाँ या. वंदामी भंतेजी. हाँ, सुखी हो. ओकास वंदामि भंते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते. ओकास वंदामि भंते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते. ओकास वंदामि भंते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते. ओकास अहं भंते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि. अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भंते. द्वितीयंपि ओकास अहं भंते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि. अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भंते. तृतीयंपि ओकास अहं भंते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि. अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भंते. मी त्रिशरण पंचशील म्हणेल, माझ्या मागे म्हणायचं. हा, आवाज येतो का? हो हो, येस.
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि पानातिपाता सिक्खापदं समाधियामि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारवेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सिक्खापदं समादियामि शूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि
धम्मं नमामि संघम नमामि। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। यस, नाउ हम सब ने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया है। अभी नाउ इस टाइम कि हम अभी बंते जी को प्रोग्राम हैंडल करें। बंते जी, आज का जो विषय है मैंने तो इंट्रोडक्शन में आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया, और कुछ आप शेयर कर सकते हैं तो यस, यू आर वेलकम। एंड आज की जो देशना है उसका आप प्रारंभ कर सकते हैं। बंते जी प्लीज। Thank you very much, Somkor Saabji. Thank you very, very much. Grateful to you. And grateful to all the participants who are there, who are the big guns, big guys, big brains, our think tank of the Indian Buddhist people. So I'm very proud of you all to be here. And I would join now. I'm joining. And of course, now I would start. Should I? Yes, Bante ji. Yeah, please go ahead. Let all the people mute so that they can hear me properly. Yeah. And I keep myself unmute so that I can talk to you. Would that be all right? That's fine. That's fine. That's fine. Yeah. But you may talk anytime in between. Somkor Sahib, you are at liberty. Yeah. To talk to me anytime, and somebody also, someone, right? Okay, yeah, fine. But after your Deshna Bhante ji, we'll have a question answer session. Oh yes, yes, wonderful. Yeah, I would be very happy to listen to and get your questions, and I'll be happy to answer them. Yes, yes, right? yes. So should I talk now? Start? Oh, yeah. Oh yes, Bhante ji. Yeah, you can start now. Yes. My first question to you is, before I start, am I audible proper? Yes, you are audible. Yeah, 100%. Do I look all right with my cap on? No problem, Bhante ji. Yeah. I can put the cap off. No, and then it's I okay. put the cap on. Yeah. So this is okay. Yeah, This that's is fine. not a That's monkey cap. Huh? This is not a monkey cap. Yeah. This is monk's cap. Monk's cap. Yeah. Okay. This is monk's cap. Monk's cap. Okay. So I first of all, let me start. Bhagwan Buddha, Param Pujya Dr. Baba Sahib Ambedkar, my dear friend in the Dhamma, Engineer Sahib, Jagesh, he's really worldly, Jagesh Somkor Sahib, and my brothers and sisters in the Dhamma. सोमकोर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आजचा टॉपिक खरोखरच मजेदार आहे, चांगला आहे. आणि माझ्या समोर जे आता काही लोक आलेले आहेत, इंट्रोड्यूस करत होते स्वतःला, ते सगळे मोठ्या फील्ड मधले आहेत. कोणी न्यूक्लिअर प्लांट मधले आहेत, कोणी डायट्रिशियन आहेत, कोणी डॉक्टर्स आहेत, कोणी फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आहेत, PhDs आहेत, आणि एनलाइटन क्लास आहे सगळा. पण मला हिंदी या माफ कीजिए कि मैं मराठी में बोल रहा था, क्योंकि मेरे सामने जो साहब है वो मराठी में दिख रहे हैं. तो now I would switch on to Hindi and of course English, right? Yeah, please, yeah. तो भाइयों और बहनों, देखो मुझे हिंदी आती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं आती, जैसे लोगों को आती है ऐसी नहीं आती, लेकिन आती. और कभी कभी ऐसी जाती है कि उसमें बीच में इंग्लिश आती है. चलेगा. You have to bear with me, right? Yes, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और साहब जी ने कहा है आपको बड़े अच्छे तरीके से, सोमकोर साहब जी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है, और मेरे बारे में तो इतना कुछ कहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये आज मेरे को आज समझा. तो इतना बड़ा मैं नहीं हूँ, माफ कर देना, लेकिन आप बड़े अच्छे लोग हैं, इसलिए बहुत अच्छा बोलते हैं, और यही धम्म है, सबने सबके बारे में अच्छा बोलना. और आप बहुत अच्छे, इसलिए आप बहुत अच्छा बोले हैं, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. सो लेट मी बिगिन विद माय टॉक नाउ, द रियल जिस्ट, जो रियल है मेरा टॉक, जैसे कि बौद्ध धम्म और विज्ञान, बौद्ध धर्म एंड साइंस, इसका कोरिलेशन. आपको ताजुब होगा कि आज के जमाने में सारी दुनिया बोल तो सारी दुनिया, यू कैन अंडरस्टैंड द होल ग्लोब, भगवान बुद्ध के बारे में ही सोच रही है. हर रिसर्च का पन्ना आप खोलो, हर सभी पत्रिका आप खोलो, संशोधन पत्रिका,
You get Buddha and Dhamma. You get Buddha and science. You get Buddha and quantum physics. You get Buddha and brain chemistry. You get Buddha and quantum behavior of the mind. You get Buddha और जितने भी विषय है, कॉस्मोलॉजी भी, इवन ब्लैक होल्स, कॉस्मोलॉजी, इस पर भगवान बुद्ध ने उस जमाने में 2600 years ago जो कहा वो आज खोज में आ रहा है. उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में बोला है, भगवान बुद्ध ने, आज उसकी खोज हो रही है. और रॉजर पेनरोज को जो बुद्ध के थियरीज पर काम करते हैं अभी पिछले 15 साल से, इज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ कोर्स, रॉजर पेनरोज, उनको ब्लैक होल के थियरी पर नोबेल प्राइज मिला है ये साल. और आपको मालूम होगा कि उनका धम्म का स्टडी काफी है. सो दिस आइडिया मस्ट, एज आई अंडरस्टैंड, must have been taken from the Buddha. Yeah. बंते जी आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ जी, आपके बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, आवाज नहीं आ रही थी. कैन यू रिपीट प्लीज? बीच में आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि मेरे को किसका तो भी फोन आ रहा था. ओके और ओके. किसका तो भी बोले तो बहुत बड़े आदमी, वो अपने गोंदिया के बहुत बड़े साहब है, चीफ जस्टिस थे जी 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 इंडिया के, महाराष्ट्र के जी. और वो बड़े प्यार करते हैं मेरे को, तो उनका फोन था. तो उनको भी माफ करो और मेरे को तो माफ करो ही दो आप. बंद किया उनका. ओके. तो सब्बे धम्मा अनिच्चाति, डेविड बॉम का काम इस पर है, सब्बे धम्मा अनिच्चाति. भगवान बुद्ध ने एक सेंटेंस कहा, and that comes under so many equations of all the Nobel laureates, different Nobel laureates, and then I'll let you know the names of those people. वो लोगों के नाम मैं आपको बीच बीच में कहा करूंगा. और आप तो यहाँ साइंटिस्ट भी लोग हैं, केमिस्ट भी है, फिजिसिस्ट भी है, डॉक्टर साहब भी है, इंजीनियर है, सबको साइंस का बैकग्राउंड है. साइंस का बैकग्राउंड नहीं होने वाला बाई चांस यहाँ आपके साथ में बाई चांस एकाध हो सकता है, तो उन्होंने मुझे माफ करना चाहिए. और मैं उनके लिए भी when question answers come, then I can come before them. Okay. Or not only that, second equation or second formula of the Buddha, which goes in Gatha, like अनिच्चावत संखारा, जितने भी संस्कार है, जितने भी phenomenon है, okay, संखारा means phenomenon, all are impermanent, all are impermanent. हम impermanent है, दुनिया impermanent है, यूनिवर्स impermanent है, सभी impermanent है. भगवान बुद्ध ने उस वक्त कहा, everything is changing, हर चीज सेकंड टू सेकंड, मोमेंट टू मोमेंट बदल रही है. और हम अब देखो, मैं आपको जो दिख रहा हूँ, या सोमकोर साहब आपको दिख रहे हैं, या जो भी साहब सुन रहे हैं मुझे, वो पहले माँ के पेट में से उनका जन्म हुआ, then they started growing and now they are what they are, like scientists, professors, engineers, whatever they are, and they are changing every second. There is a change in their genetics every second, in the cells of the genetics. I mean, neuronal or otherwise chromosomes, all are changing. All the chemicals, all the enzymes, all the proteins, all the molecules, all the atoms, all the electrons, protons, जितने भी अणु, रेणु और उसके सब रेणु जितने भी है, वो बदल रहे हैं. और भगवान बुद्ध पहले ऐसे थे कि जिन्होंने ये सब कहा है, और अभी इसको सब खोज चल रही. तो मैं दुनिया में भगवान बुद्ध को जितना भी काम हो रहा है, उसके कुछ ग्लिम्स या कुछ बातें कहूंगा, या कुछ उसके नाम कहूंगा, इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा काम किया रहा है दुनिया में, और भारत में वो तरीके से काम नहीं हो रहा है. और जो हो रहा है, थोड़े से है साइंटिस्ट इंडियन, बट दे आर ऑल्सो अब्रॉड. दे आर, कोई कैम्ब्रिज में, तो कोई यूएसए में, कैलिफोर्निया में, ऐसे अपने लोग हैं. एंड ऐसे लोग बोले तो इंडियंस, इंक्लूडिंग अस एंड मेनी, बट वेरी फ्यू इंडियंस who are not here but abroad in those countries are working in the theories of the Buddha with all those scientists there. वो साइंसदान के साथ वो भगवान बुद्ध के बहुत सारे थ्योरीज पर काम कर रहे हैं.
और उनका संशोधन भगवान बुद्ध ही बोलते हैं। जैसे कि मैं आई जस्ट रीड आउट द नेम्स ऑफ फ्यू पेपर्स, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में भगवान बुद्ध पर के थ्योरीज पर या भगवान बुद्ध के विज्ञान पर कैसे साइंसदान काम कर रहे हैं। मैं फास्ट तो नहीं ना? नहीं ठीक है बनते जी, इट्स ओके। ठीक है कि स्लो कर दूं मुझे? नहीं इट्स ओके या आर यू श्योर? ओ यस बनते जी या। हाँ जी, हाँ जी। तो पहला मैं पेपर का नाम पढ़ता हूं आपके सामने, द न्यूरो साइंस ऑफ मेडिटेशन, क्लासिफिकेशन, फेनोमेनोलॉजी, कोरिलेट्स एंड मैकेनिज्म। ये पेपर 2019 का है, पिछले साल का। बोले तो 20 साल, लेकिन 20 के आखिरी में 19 जब दिसंबर नवंबर का पेपर है, 19 का, बहुत रिसेंट। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, अ थियरी ऑफ डीप क्वांटम केमिस्ट्री एंड सेल कॉन्शियसनेस। क्वांटम केमिस्ट्री कंट्रोल्स जीन्स and biochemistry to give cells and higher organisms the consciousness and complex behavior. This is second paper. जिनको अंग्रेजी आती नहीं या ये समझ में नहीं आता, तो जरूरी नहीं कि ये सब समझ में आए, लेकिन जिनके समझ में आता है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी 2-3 ही पेपर के नाम बोलता हूँ, दे आर वेरी रिसेंट पेपर्स ऑफ लास्ट ईयर्स। देन एक और दूसरा पेपर, 18 साइंस बैक्ड रीजंस to try loving kindness meditation. I'm just reading the themes for you. This is what the work is being done. ये सारा काम साइंटिस्ट का काम दुनिया में हो रहा है, दुनिया में अलग अलग जगह से, मोस्टली यूएसए, जर्मनी, देन इजराइल ऑल्सो, फ्रांस ऑल्सो, इंडिया के यहाँ के लोग वहाँ हैं, वो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, एंड दलाई लामा का होल ग्रुप। मैं देखा परसों के दिन जोगेश साहब दलाई लामा के साथ है। तो दलाई लामा ने तो बहुत बड़े नोबेल लॉरिएट्स उनके साथ, उनके टीम में काम करे धम्म पर, भगवान बुद्ध की थियरीज। तो उसमें मैथमेटिशियंस है, फिजिसिस्ट है, केमिस्ट है, इंजीनियर्स है, स्पेस साइंटिस्ट है, क्या क्या कौन कौन नहीं। ओके, लेट्स go over to next paper which is very recent again. All of them of course are very recent. ये मैं सब आपके लिए इसलिए पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि आपको मालूम हो कि भगवान बुद्ध के धम्म पर कैसे कैसे तरीके से काम हो रहा है। जस्ट टू लेट यू नो दैट, क्योंकि आप तो मेरा सुनेगा नहीं, मैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडियन बनते का कोई सुनते ही नहीं है, और इंडियन बनते कुछ समझता नहीं, ऐसा भी लोग बोलते हैं, तो उनका भी बराबर है। यदि मेरे को कुछ समझता नहीं है तो सच बोल रहे तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक आध बंदे को नहीं समझता है तो नहीं समझता है, अब मेरे को नहीं समझता है तो मेरे को माफ कर दो, तो नहीं समझता है, that's all you can say it. That is the freedom Buddha gave you, the only man on the earth, the only scientist on the earth, the only founder of the religion on the earth, who gave you freedom to say this in Kalama Sutta. I'll let you know when I come to that. ये सब मैं आप जब मैं लेक्चर के बीच में आऊंगा तो I'll just talk to you all. This another paper is an anatomical, biochemical, biophysical and quantum basis for the unconscious mind. This paper. Now here also the scientist speaks about Buddhism. This is very interesting. I do not want to go into each of these papers because if I speak on one paper that might take 1 hour. तो मुझे तो साहब ने कहा है कि बनते जी आप आधा ही घंटा बोलो, नहीं बनते जी, नहीं आधा घंटा नहीं, यू कैन टेक योर टाइम, देयर इज नो इशू। या अच्छा, कोई इशू नहीं, तो मुझे तो कोई इशू है नहीं, मैं तो बनते हूँ। हेलो, so thank you very much for granting me the time and of course I'll be brief also. मुझे बोलना है आपको, बनते यहाँ रुको, मैं बड़ा ये मामले में अच्छा बनती हूँ, रुको बोले कि बस एकदम रुक जाता, so I'll be grateful to you if you say that. Then the last paper, which is very interesting, I'm sure this would be liked by everyone, all the scientists of various fields. This is quantum physics in neuroscience and psychology, a neurophysical model of mind-brain interaction. And these are a few papers I brought to your understanding and to your notice.
just to know how abroad people from USA, France, America, Germany, Japan, London, and of course Indians who are there working on Bhagwan Buddha's philosophy. Not only philosophy, the whole of Dhamma. Now, whole of Dhamma constitutes 4 Aryan truths, Eightfold Path, right? Eightfold Path, if you bring it to a concise kind of thing, then it becomes Shila, Samadhi, Prajna, that is Eightfold Path, okay? And then it talks about Dukkha, okay? Dukkha, Anitya, Anatma. So all these signs of the Buddha, which now being taken up, picked up by all the scientists in the world, and mostly they are Nobel Prize winners, most of them. ये सारे साइंसदान मैक्सिमम ज्यादातर नोबेल प्राइज विनर्स है. अब मैं भगवान बुद्ध के धम्म को कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, भगवान बुद्ध के धम्म को कौन कौन से नियम, साइंटिफिक नियम लागू होते हैं या उन पर अभ्यास किया जा रहा है, तो उसकी सिर्फ लिस्ट पढ़ूंगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट पर मैं 1 घंटा या 2 घंटे बोल सकता हूँ. ये इसलिए कि the subject is very vast. Now I'll just बोलूंगा कि भगवान बुद्ध का धम्म कौन कौन से लॉज को अप्लाई होता है. See, in macro level, these laws can be applied. I mean the laws of physics, chemistry, mathematics, quantum science, quantum neurobiology, all these fields, even food. जैसे कि डायटिस्ट आप कोई है, मैं सुना हूँ कि डायटिशियन. So let me tell you one by one, Buddha's laws, I mean the physical laws, are applicable very exactly to the Dhamma. Number 1, all the Newton's laws. आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं बाद में कहूंगा कैसे. Yes, yes. Then laws of thermodynamics. Then Einstein's laws, जैसे कि theory of relativity, theory of space-time, cosmology. Then Schrodinger's equation, Heisenberg's uncertainty principle. ये सब मैं पढ़ रहा हूँ. जिनको समझता है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं समझता है उनकी तो बहुत अच्छी बात है उनकी, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरे जैसे है वो. I mean, as ignorant I am, so they are too. Then Heisenberg's uncertainty हो गया. Then laws of quantum physics applied to the subatomic particles, which are applied to the mind and matter theories of the mind and brain. Then laws of quantum mechanics are applied nowadays by Stapp and Penrose and Hameroff, all those scientists. And then another laws which are applied to nowadays only to quantum consciousness or mind and quantum consciousness behavior. Those laws are subatomic, applied to electrons, protons, neutrons, and the fields produced by them. तो ये जितने भी साइंसदान है, जितने भी अलग अलग क्षेत्र है created by all these particles बोले तो अणु, रेणु, जिसमें धन आ गया, धन रेणु बोले तो पॉजिटिव प्रोटॉन, ऋण पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल बोले तो न्यूट्रॉन. हाँ, और जिनको सब मालूम है तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, तो वगैरह वगैरह. The second thing is the laws of mathematical logic can be applied to Buddhist logic. All the laws can be applied to Buddhist logic. Then the laws of thoughts. The laws of thoughts, a book was written by Boole. Now it is called as Boolean algebra. इसको Boolean algebra बोलते हैं. अभी जो जितना भी हमारा computing science है, that is based on Boolean algebra. और उससे भी आगे जा रहे हैं अब लोग, उसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें ट्यूरिंग लॉज वगैरह आते हैं. ट्यूरिंग नाम है साइंसदान का. तो ये तो इतना, और सब बुद्ध का नाम लेते और कहते कि हमने ये सब आइडियाज बुद्ध से लिए. ये उनका बड़प्पन है. हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम बुद्ध का नाम क्यों नहीं लेते, मुझे तो समझ में नहीं आता. सारे दुनिया के लोग बुद्ध का नाम लेते हैं, यहाँ के भी इंडियन वहां जाके नाम लेते हैं, लेकिन उनके साथ, लेकिन अकेले की उनको पूछा ना. मुझे माफ करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते उसको, मैं किसी की आलोचना नहीं करो. सर जी थैंक यू. ऐसा बीच बीच में मुझे मदद करो तो मैं आपको बाद में
चॉकलेट है मेरे पास, लेकिन आप छोटे नहीं है, बच्चों के लिए रखता हूँ। लेकिन आप चाय पी रहे, क्या आप, मुझे चाय नहीं और आप पी रहे, बड़ी अच्छी बात है। आपके लिए भेज रहा हूँ बंटी जी। नहीं, मुझे तो टेलीपोर्टेशन से बोलो ना कि भाई द टी इज कमिंग टू यू बाय टेलीपोर्टेशन ओ एंड यस आई यस, गेट इट, आई गॉट इट। बिल्कुल। बीच में इसलिए बोला कि आई जस्ट वांटेड टू फ्रेश यू, दैट्स ऑल, नथिंग लाइक दैट। या या Okay, then the laws of thoughts which have been written by Bullion, I mean the Bull. Second, the Bull was appreciated by Bertrand Russell and Whitehead a lot because they were the ones. The Bull was the one to create laws of thoughts and write in mathematics in algebra for the first time in the world. And then that same sting was वही बातें फिर Whitehead और बर्ट्रैंड रसल ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो किताब लिखा है उन्होंने, उसमें आई है सब। तो forget about it. Then most important is the laws of paradoxes. बोले तो जैसा कि अब मैं बोल सकता हूं कि सोमको साहब चाय पी रहे हैं, चाय नहीं पी रहे, मतलब सोमको साहब सिर्फ इलेक्ट्रॉन पी रहे हैं ऐसा भी बोला तो बराबर है, और इलेक्ट्रॉन नहीं पी रहे तो अब तो पी नहीं रहे क्योंकि ग्लास उन्हें कप बाजू में रख दिया, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन वो जा रहे इधर उधर, उनके इधर भी जा रहे हैं। एंड देन डिफरेंट वे थर्मोडायनेमिक्स इज चेंजिंग ऑफ हिज माइंड। जो भी चाय पी रहे, मुझे तो अकेले दिख रहे हैं, बाकी के लोगों को भी दे सर चाय जी, चाय। हाँ सर जी, बाकी के लोगों को भी चाय दे। सबको भेज रहा हूँ मैं, जो आपका जो टेक्निक है ना टेली वाला, जो स्पीकर है उनको चाय नहीं रहती है, ऐसा है ना? ये इंडियन सिस्टम बड़ी अच्छी है। sorry just to make you laugh, huh? Okay, then other laws like Russell paradox है mathematics, Zeno's paradox है mathematics का, and then Henon equations है paradox है, then Lorentz, ये सिर्फ नाम बोल रहा हूँ मैं आपको क्योंकि एक एक साइंसदान का जो काम है वो बुद्ध की एक एक थियरी मैथमेटिक्स की प्रूव करता है। Then Lorentz equations, then non-linear mathematics, पूरा यानी ब्रेन कैसा चलता है, थॉट्स कैसे चलते हैं, स्लीप कैसे आती है, सर्केडियम कैसा होता है, नींद कैसी नहीं आती, नींद कैसी आती है, कैसी जाती है, क्यों नहीं आती है, क्यों आती है, और खाना खाए तो क्यों आती नहीं है, नहीं ज्यादा खाए तो क्यों आती है, क्यों क्या बोलना, ज्यादा खाए तो ज्यादा आती है और कम खाए तो कम आती है, all that. Then and many more laws of quantum computing also. At the same time, them laws which are applicable to the Dhamma are vacuum state energy. जैसा कि ये दुनिया जीरो से पैदा हुई है, लेकिन ये जीरो पोटेंशियल है, इसमें सब क्रिएट होता है। ये पूरा कायनात, पूरी कायनात शून्य से पैदा हुई है, लेकिन ये शून्य शून्य नहीं है, ये शून्य में सब कुछ है। It is creating everything, dissolving everything. Then you can speak in terms of black holes, speak in terms of Suraj, many suns, galaxies, वगैरह वगैरह, all cosmology that comes in that. And once the Buddha was asked, भगवान बुद्ध को एक बार पूछा गया कि भगवान कितने गैलेक्सीज है दुनिया में, तो क्या उत्तर था भगवान बुद्ध का मालूम है? भगवान बुद्ध ने कहा there are infinite galaxies, infinite आकाश गंगा है। अब एक एक आकाश गंगा खोज आ रही है, एक आ रही है, दूसरी आ रही है, जैसा जैसा टेलीस्कोप, माइक्रो टेलीस्कोप जैसा जैसा खोज लग रहा है, बड़ा हो रहा है, माइक्रो 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 माइक्रो, द मोस्ट माइक्रो। नाउ वन गैलेक्सी, सेकंड गैलेक्सी, थर्ड गैलेक्सी, इतने लाइट ईयर, हजारों मिलियन ट्रिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स की गैलेक्सी अब पा रहे हैं आप, जो बुद्ध ने उस समय बोला था। और फिर भी भगवान बुद्ध को जब पूछा कि भाई सर जी आपने कितना है ज्ञान दुनिया में, तो ही सेज लुक आई एम इन द फॉरेस्ट, मैं ये जंगल में खड़ा हूं और ये जंगल में से कुछ पत्ते उठाता हूं, हैंडफुल ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज, तो मैंने इतना ही आपको पढ़ाया है, इतना ही आपको दिया है, बहुत कुछ है। इसका मतलब नहीं भगवान बुद्ध बहुत ये थे क्या, बहुत इंग्लिश में बोल जिनको बहुत मालूम रहता ना वो बोलते मुझे कुछ मालूम नहीं, he was like that। तो अभी समझ में आ रहा कि भगवान बुद्ध को इतना मालूम था, इतना मालूम था, इतना मालूम था, इतना मालूम था कि इनफिनाइट ही न्यू, एवरीथिंग ही न्यू इनफिनाइटली, एंड दैट हैज बीन नाउ डिस्कवर्ड, वो अभी प्रूव हो रहा है। तो और दूसरे लॉज है,
लॉज ऑफ न्यूरोडायनेमिक्स, ब्रेन कैसा चलता है, न्यूरॉन कैसे बदलते हैं, ब्रेन सेल्स कैसे बदलते हैं, उसकी केमिस्ट्री कैसी बदलती है, उसके उनके पेप्टाइड्स, उसके जीन्स, उसमें का केमिकल्स, उसमें के प्रोटीन्स, उसमें के everything that goes on changing at the level of electrons, protons, neutrons, and not only that, beyond that, fields, the fields created by their movement. Okay, so all these laws, and then laws nowadays of teleportation, जैसे कि मैं साहब के सपने में कल आया, साहब मेरे सपने में कल आए, दिस इज टेलीपोर्टेशन। या मेरी माँ मर गई लेकिन मेरे सपने में आ रही और मेरे साथ बात कर रही और वो वैसा ही हो रहा, तो दिस इज टेलीपोर्टेशन, इसको बोलते हैं टेलीपोर्टेशन। बोले तो क्या टेलीपोर्टेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? वो साहब हंस रहे, वो बोल सकते कुछ, अंकुश साहब? साइंस अच्छा, केमिस्ट्री वाले कुछ बोलिए जरा आप लोग। परुणकर मैडम है, मैं जान लिया कि वो केमिस्ट्री की मेरी जान दिख रही उधर एक। केमिस्ट्री फिजिक्स वाले बोल सकते हैं। जी हाँ जी, आप भी बोल सकते हैं, आप इंजीनियर साहब है, बहुत आपके हमारे बड़े साहब है, आप तो हमारे इंजीनियर का मीनिंग ही बड़ा बड़ा होता है, इंजन और बहुत नियर, यानी हमारा सारे इंजन आपके बहुत नियर है, उसको बोलते हैं इंजीनियर। All our brains, body, feelings, emotions are with you, with all the people in the world. So that is called teleportation. Okay, and this has been proved by David Bohm, a Nobel laureate. Okay, okay. So that is what the Buddha said. Now I come to the conclusion, but my speech is not ended. मैं conclusion पर आया हूँ, लेकिन short conclusion आया हूँ कि ये सारे नियम भगवान बुद्ध के धम्म को, मतलब 4 आर्य सत्य को परफेक्टली लगाए जाते हैं। कोई भी लॉज, एवरी लॉ कैन बी अप्लाइड टू धम्म ऑफ द बुद्धा। टेक फॉर इंस्टेंस 4 आर्य ट्रुथ, 4 आर्य सत्य। टेक फॉर इंस्टेंस 8 फोल्ड नोबल पाथ, बोले तो अष्टांग मार्ग। टेक फॉर इंस्टेंस दुख, टेक फॉर इंस्टेंस अनित्य, टेक फॉर इंस्टेंस अनात्मा। ये सारे लॉज जो है, ये भगवान बुद्ध के थ्योरीज को, ज्ञान को, धम्म को अप्लाइड किया जाता है। और इसका पूरा नॉलेज जिसको होता है, पूरा नॉलेज जिसको होता है, वो एनलाइटन बन जाता है, वो भगवान बुद्ध बन जाता है। फिर भगवान बुद्ध बनना बोले तो महाकारुणिक होना, यानी सिंप्लिसिटी में भगवान बुद्ध बनना बोले तो महाकारुणिक होना, उसको सारे लॉज यानी उनको समझना, दुनिया समझना, गैलेक्सी समझना, हर कुछ, हर चीज समझना और हर चीज का कारण समझना। जैसे कि देयर इज दुख, देयर इज अ कॉज ऑफ द दुख, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण हो सकता है और दुख का मार्ग है। ये अपने साइंटिफिक भाषा में अपन आज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में कह सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं सब लॉज। और कोई लॉज अप्लाई नहीं किए बगैर भी ये समझा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द बुद्धा से। नाउ मैं कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने भगवान बुद्ध के ये लॉज के बारे में, धम्म के बारे में जो संशोधन किया है, तो उनका सिर्फ उन्होंने जो कहा है थोड़े थोड़े इसमें हिस्से में कहता हूँ। देखिए, आई टेक फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा साहेब अम्बेडकर। आप और मैं और पूरा भारत और पूरी दुनिया बाबा साहब को सलाम करना चाहिए, जय भीम करना चाहिए, नमो बुद्धाय महीना बोलना चाहिए। He was the one nearest to the enlightenment. और वो हमारे लिए काम नहीं करते थे ना, तो वो तो बुद्ध ही बन जाते थे, या बुद्ध थे भी, I can say. So much he worked for us, one man, one army, as if thousand scientists were working in Baba Saheb Ambedkar. Let me tell you, economist in Baba Saheb Ambedkar, law in Baba Saheb Ambedkar, Buddha in Baba Saheb Ambedkar, Kabir Baba Saheb Ambedkar में, और क्या फुले बाबा साहब अम्बेडकर में, चौ महाराज बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, क्या क्या नहीं बाबा साहब। तुम्हारे सारे रिजर्वेशन बोले तो सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमको इसलिए कि हमको इतना दूर कर दिया था, तो बाबा साहब ने, बुद्ध ने हमको सबके करीब किया। और हम क्यों दूर गए थे? क्योंकि जिन्होंने हमको दूर किया उनको समझ में नहीं आया था कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनको काय को बेचारे को दूर करते, ये समझ में नहीं आया था। अभी समझ में आ रहा तो सब करीब कर रहे हैं, तो हमने भी उनको यस कहना चाहिए।
So this is goodness. Be kind to all. That is what compassion is. If they are kind, be kind. If they are not kind, you be kind. Let me tell you the example of Jesus Christ. आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरे पास दो किताबें हैं और दोनों भी किताबें जर्मन जूज लोगों ने लिखे, दे आर साइंटिस्ट. वन इज द ओरिजिनल जीसस नाम की किताब है, दूसरी द 17 लॉस्ट इयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो ये जो किताब है कि जीसस क्राइस्ट के 17 लॉस्ट इयर्स, तो 17 साल, क्योंकि वहां के लोगों ने जीसस क्राइस्ट भगवान बुद्ध के थ्योरीज बोलने लगे, ऐसा होने लगा, तो उन्होंने हकाल दिया. तो जीसस क्राइस्ट वाज इन लद्दाख मोनेस्ट्री में, और वहां वो पोएट थे, उनके गाथाएं हैं. ही वाज देयर फॉर 17 इयर्स और ही वाज अ बुद्धिस्ट मंक, रिकॉर्डेड बुद्धिस्ट मंक. उनकी गाथाएं हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है. ये दो किताबों के नाम मेरे पास है, आप लोगों को बोल रहा हूँ. द 17 इयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, सेकेंड द ओरिजिनल जीसस क्राइस्ट. ये किताबें अमेज़न पर मिलती है. आप अपने बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप वो सर्च पर जाओ गूगल पर, आपको किताबें मिल जाएंगे. लेकिन मिल जाने के लिए पैसे देना पड़ता है. वो जो है ना, अमेज़न वाले पैसे लेते हैं. मैं ऐसे जो है तो मुझे लगा कि वो पैसे नहीं लेंगे, तो एक दो पन्ने भेजे उन्होंने, बाद में पैसे का लिखा कुछ भी नीचे. तो ऐसा होता है, वो तो पैसे भी देना पड़ता है किताबों के लिए. तो फॉर द सम बुक्स नो, यू डोंट हैव टू, बट फॉर सम यू हैव टू पे. तो ये इसलिए बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए. नाउ लेट मी गो फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बोलते हैं. बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन इतना महान है, इतना महान है. आफ्टर बुद्धा देन कम अशोका फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द धम्मा. आफ्टर अशोका कम्स बाबा साहेब अम्बेडकर. बाबा साहब का अम्बेडकर का कर्तृत्व तो इनसे भी ज्यादा बड़ा है, ये अशोक साहब से, सॉरी किंग अशोका से. क्यों पूछो? क्योंकि किंग अशोका के साथ उनके काका मामा ये सब लोग पुराने पूरे सारे उनके रिश्तेदार किंग्स थे. भगवान बुद्ध के जमाने में उनके काका मामा चाचा क्या क्या सब रिश्तेदार पूरे उनके हाथ में किंगडम था, वही राजा लोग थे. तो उनको राजा श्रेय मिला भगवान बुद्ध के टीचिंग को. तो उस जमाने में जो नहीं चाहते हुए भी बुद्ध बने, मंक्स बने, और उन्होंने बुद्धिज्म का काफी प्रचार किया और अच्छा दुनिया में लेके गए वो. So that was the time, the era of the Buddha. Then comes the era of the Ashoka, the king, the emperor. Then comes the time of Dr. Ambedkar, Baba Sahib, the Bodhisattva we call him. And he was such a great man. You can understand now. कोई भी दुनिया में जाओ, कोई भी देश में जाओ, बाबा साहब के बगैर ना इकोनॉमिक्स कोई बोलता है. I mean, evolved economics only Baba Sahib could give. Evolved Dhamma Baba Sahib could give. New यानी फाइंड आउट करके साइंटिफिक रिलीजन सिर्फ भगवान बुद्ध का बाबा साहब ने दिया. ताज्जुब होगा आपको. मैं श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, बर्मा गया, सिंगापुर गया, और मोस्ट ऑफ द जर्मन यूएस पीपल एंड इंग्लिश पीपल हैव बिकम मंक्स. ये जो लोग भिक्खु बने हैं, ये श्रीलंका में बने, नहीं तो थाईलैंड में बने. और ताज्जुब की बात, श्रीलंका में हिंदुइज्म ज्यादा है बुद्धिज्म से. तो मुझे तो शॉक हुआ. श्रीलंका में कास्ट सिस्टम है. कैन यू इमेजिन दैट? मेरे को तो बड़ा अजीब लगा. तो क्या बोलूं, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा देके इतना बड़ा काम किया. पूरा साइंस लाया धम्म, और उन्होंने वैसा ही नहीं लाया, नॉट हिज ओन वर्ड्स. भगवान बुद्ध की गाथा पेश की, ये मेरी गाथा है भगवान बुद्ध बोलते. दूसरी गाथा पेश की, ये मेरी गाथा है भगवान बुद्ध बोलते. तीसरी गाथा पेश की, और सब साइंस की गाथा है बाबा साहब ने. और जो ये गाथा साइंटिफिक नहीं है, जो तुम्हारे और किसके और दूसरों के काम के नहीं है, वो मेरी टीचिंग नहीं है. द टीचिंग, माय टीचिंग इज, जो आपके भलाई की है और दूसरों के भलाई की है, ये यदि कोई कहता है तो वो मेरी टीचिंग है. और ये यदि आपके भी भलाई की नहीं और दूसरे की भी भलाई की नहीं, तो वे मेरी टीचिंग नहीं है. इतने सिंपल वर्ड्स में बाबा साहब बुद्ध को पेश करते हैं. अच्छा, लेट मी टेल यू बाबा साहब इन वन वर्ड. The whole group of scientists, the whole world working on that is, बाबा साहब कहते हैं बुद्ध के माध्यम से, mind is the only instrument through which light can come to man. मन ही ऐसी चीज है, मन ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके वजह से आदमी को लाइट मिलता है, बोल तो ज्ञान प्राप्त होता है. यदि मन निकाल दो,
बुद्धि निकाल दो तो हमको ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। और इट इज ट्रू, यानी बुद्धि नहीं है, मनी। देखो ना लोगों को, आप जिसको आप देखते होंगे, अनेक सारे लोग हैं बेचारे, दे आर दुर्भाग्य, आई एम सो सॉरी अबाउट देम, जिनको सोचने का बुद्धि नहीं, आई मीन नॉट मच ब्रेन, you know, it's because of genetics, because of so many other things also. And then जिनको इतनी बुद्धि है कि then they become like you, they become like Baba Saheb Ambedkar. So it's the mind that gives everything to you, that gives life to you. The Buddha says the same thing Dr. Ambedkar says, Baba Saheb says in Buddha in his Dhamma in page number 124. Well, that's all that is. Then another man comes, Bertrand Russell, very famous man. बर्ट्रैंड रसल के बारे में आपने बहुत लोगों ने सुने होंगे. आई वॉज अ बिग फैन ऑफ बर्ट्रैंड रसल. इन द एज ऑफ 19, मैं जब 19 साल का था, तो मुझे कैसी बुद्धि आई मेरे को मालूम नहीं, कि लेकिन मेरी माँ बहुत होशियार थी. वो माँ इसलिए होशियार थी, मैंने पूछा एक बार माँ को, मतलब माँ तुम क्यों होशियार हो, ऐसा पूछा मेरे माँ को मैंने. तो माँ ने कहा मैं इसलिए होशियार हूँ. तो एक तो पहले हंसी हुआ, बोलती मैं इसलिए होशियार हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ. मेरी माँ कहती बेटा मैं इसलिए होशियार हूँ कि मैं मजदूर की बेटी हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ. मतलब माँ मग तू मला मराठी में बोलू ना एक शब्द. हाँ बोला बोला. माझी आई म्हणते मला, बाबू म्हणे तुला बुद्धी आहे माझ्यासारखी, पण तुझी बुद्धी मोठी होऊ शकते तू मिलिंद कॉलेजला बाबासाहेबांच्या कॉलेजला शिकायला गेला तर. आणि मी मजुरीचे 2 रुपये कमावले म्हणे, मैंने मजदूरी करके घास काट के 2 रुपये कमाए हैं, वो मैं तेरे को देती हूँ, लेकिन ये 2 रुपये मैं तेरे को इसलिए देती हूँ कि ये 2 रुपये लेके तू लंदन को जाना पढ़ने के लिए, जहाँ बाबा साहब गए थे. ये मेरी माँ, ये सही बुद्धि. और मैं सही बोलता हूँ, आई हैड गॉन टू लंदन. मेरी माँ जिंदा थी 1999, और आई वॉज इन्वाइटेड बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री टू स्पीक माई रिसर्च ऑन माइंड, मेडिटेशन एंड मॉलिक्यूल्स, and of course quantum dynamics of the mind during meditation. तो ये मेरी माँ. किससे प्रोत्साहन लिया, किससे इंस्पिरेशन लिया? बाबा साहब से, बाबा साहब से. तो इसीलिए हम अभी व्हाट वी आर इज बिकॉज ऑफ बाबा साहब. सबको साहब हो, आप सब लोग हो जो भी सुनते हैं, गिराम साहब, अब सब लोगों के नाम मुझे नहीं मालूम यहाँ, लेकिन जितने भी आप यहाँ है और जितने भी आप यहाँ नहीं है लेकिन सुन रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है हमको, या उनके माँ बाप की तो देन है ही, whatever they have. ओके, जो बाबा साहब को नहीं मानते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, तो we should forgive them. और जो बुद्ध को मानते, वेरी गुड. नहीं मानते, फ्रीडम टू देम. इट्स ऑल द बुद्धा. लेट मी नाउ टॉक अबाउट बर्ट्रैंड रसल. सर किती वेळ झाला, इफ यू डोंट माइंड, मी पाहतच नव्हतो. 7 वाजून 7 झाले. या इट्स ओके बनते, चला बोलू ना. हो. हाँ, बर्ट्रैंड रसल म्हणतात, a Nobel Prize winning mathematician says, Buddhism is a combination of scientific and speculative philosophy. बौद्ध धर्म साइंस की मेथोडोलॉजी तो यूज करता ही है, लेकिन वो फिलोसॉफी भी है, एक धम्म दर्शन भी है, लेकिन ऐसा धम्म दर्शन कि जो आपको भलाई, आपकी भलाई चाहता है, जो आपका कल्याण मित्र की भाषा बोलता है, ऐसा धम्म जो आपका उत्थान करता है, जो आपको बुद्ध बनाता है, जो आपको प्रज्वलित करता है, जो आपको सारे दुनिया से परे कर देता है, बड़ा आदमी बनाता है, सबको प्यार करने को बोलता है, ऐसा धम्म है, ऐसा बर्ट्रैंड रसल कहता है. इट एडवोकेट्स द साइंटिफिक मेथड एंड द रैशनल थिंकिंग. बुद्धिज्म क्या करता है? बर्ट्रैंड रसल बोलते हैं दुनिया का बहुत बड़ा आदमी, नोबेल लॉरिएट, मैथमेटिशियन प्लस लिटरेरी फिगर. ओके, ही सेज भगवान बुद्ध का धम्म साइंटिफिक मेथड भी बताता है और रैशनल थिंकिंग भी देता है, कर्मकांड के पीछे नहीं पड़ता है. दिस इज व्हाट द बुद्धा इज, बर्ट्रैंड रसल सेज. एंड देन ही राइट्स अ बुक, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन. मैं उम्र का 19 का था तो बर्ट्रैंड रसल की किताबें पढ़ता था, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, देन मैरिज एंड मॉरल्स, एंड देयर आर मेनी अदर बुक्स आई रेड. एंड देन प्रिंसिपिया मैथमेटिका एट द एज ऑफ 19 आई वाज रीडिंग, जबकि मुझे जीरो भी नहीं समझता था. सही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं पढ़ता था. बाद में मेरे को समझ में लगा, पढ़ते पढ़ते समझ में आता है. करत क्या कबीर बोलते ना, करत करत से जड़ी मती हो सो सुजात, वैसा मैं सुजात होते गया. फिर आई मीन anybody can become that. That's what the Buddha says.
अत्तदीप भव, तुम ही तुम्हारे दिए बन सकते हो, तुम खुद का उजाला बन सकते हो, तुम ही बुद्ध हो सकते हैं. एवरीबडी कैन बिकम लाइक मी, मीन्स लाइक बुद्ध. सो यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ अकॉर्डिंगली एंड यू बिकम, आप बनते हैं वैसे, बिल्कुल बनते हैं. एंड यू आर इन द प्रोसेस. बुद्ध बोलते हैं बिल्कुल बन जाएंगे. सो दैट इज व्हाट द बर्ट्रैंड रसल है. बर्ट्रैंड रसल की एक दूसरी और किताब है, एनालिसिस ऑफ मैटर, एक किताब है उनकी. दूसरी किताब एनालिसिस ऑफ माइंड है, मन का विज्ञान, मैटर का विज्ञान. ये उनकी किताबें बड़ी फेमस है. और वो कहते हैं कि ये किताबें में भगवान बुद्ध को साक्षी, क्या भगवान बुद्ध से इंस्पायर होके लिखी है. रसल कहता है हमारे पास लोग लिखते हैं लेकिन बुद्ध का नाम क्यों नहीं लेते. मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बुरा लग के क्या करूं मैं, मुझे मेरे से कुछ नहीं होता, बुरा ही लगता है इसे. Forget about that. That is not very important. अभी दूसरे साहब बहुत बड़े, J. Robert Oppenheimer, the American physicist, gives analogy of an electron to Buddhism, describing the uncertainty principle. यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोले तो चीज है भी, जैसा मैं हूं और मैं नहीं भी हूं. जैसे कि मैं अभी आपको दिख रहा हूँ फिजिकल बॉडी में, लेकिन मेरे टुकड़े 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 करते जाओ, सही में नहीं है. अभी अच्छा हो गया आप दूर है, तो करते थे मेरे टुकड़े. तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप दूर है और मेरे टुकड़े नहीं हो सकते अब. लेकिन आप मन से मेरे टुकड़े कर सकते हैं. आप ऐसे टुकड़े टुकड़े बनाओ मेरे, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से, फिर टुकड़े के टुकड़े टुकड़े के टुकड़े टुकड़े के टुकड़े, इतने टुकड़े कि 9 टुकड़े. और देन atoms, molecule, then atoms, then electrons, then protons, then electrons, gamons, bosons, क्या क्या सब. ये नाम है स्मॉल 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 पार्टिकल्स के. और फिर उनका फील्ड्स, उनके क्षेत्र जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र. विद्युत. और ये सब काम करते हैं एट द बेस, जो हमको दिखते नहीं है. तो यदि सोमकोर साहब मेरे को दिख रहे, यदि बोलते मैं तो सोमकोर साहब मेरे को बोल सकते हैं कि बनते, आप बनते नहीं है, आप मेरे को फील्ड दिख रहे हैं. तो बिल्कुल फील्ड दिखूंगा आपको. सोचो वैसा, आई एम फील्ड, आई एम लहरी, आई मीन वेव्स, आई एम जस्ट वेव्स. एंड व्हेन यू सी दैट आई एम पार्टिकल आल्सो. सो द वे यू थिंक आई एम, द वे यू थिंक यू आर नॉट. तो ये भगवान बुद्ध का यानी उस वक्त ऐसा बोलना, जबकि अभी साइंटिफिक उस पर काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं. Then another man who speaks about Buddha and Dhamma, Heisenberg, वो तो कहता है, बड़ा अच्छा है, वो कहता है if you ask me for instance whether the position of electron remains the same, इलेक्ट्रॉन की यानी ऋण कण की पोजीशन एक ही जगह रहती है क्या, तो मैं कहूंगा नो. यदि मेरे को पूछा गया, if I'm asked whether the electron's position is changing with time, तो मैं कहूंगा नो. यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन टाइम या स्पेस के साथ बदलती है, तो मैं कहूंगा नो, नहीं वो कहूंगा मैं. यदि मेरे को पूछा गया, if I'm asked whether the electron is at rest, we must say no, I must say no. If he asks whether it is in the motion, I must say no. And inversely he speaks, I must say yes, yes. तो ये सब भगवान बुद्ध ने उस जमाने में कहा, लेकिन उनको ही समझा जिनको समझता था. अभी भी ये सब मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये कुछ ही लोगों को समझ सकती है क्योंकि आपको साइंटिफिक बैकग्राउंड है. और जिनको साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरी माँ रहती तो बोलती थी, मला बाबू हे काहीच समजत नाही, दुसऱ्या पद्धतीने सांग. गवताची काळी तोडली तर किती कशी होते, नष्ट कशी होते, नदीचं पाणी बदलते कसं, तिचा प्रवाह तसाच राहतो काय, आणि तो किती सेकंदाला बदलतो. ही माझ्या आईने असं विचारलं असतं. मेरे माँ ने ऐसा मेरी माँ ऐसी पूछती थी. और मैं बुद्ध की थियरी, ग्रास, नदी, पेड़ पौधे, फूल, इसमें बात करता था. भगवान बुद्ध वैसे ही बात करते थे, फिलोसोफर के साथ फिलोसोफर की जैसी, मजदूर जो जिनको मालूम नहीं कुछ तो उनकी जैसी, और जिनको बहुत मालूम है तो उनकी जैसी, और जिनको साइंसदान है तो साइंसदान की जैसी. दिस वाज व्हाट ही वाज टीचिंग. और हमने यही आज सीखना चाहिए. जैसे कि मुझे साइंस मालूम है, आप लोगों को साइंस मालूम है. वी शुड बी एबल टू. नाउ व्हेन आई बीन टू जर्मनी, लंदन, जापान, यहाँ तो मेरे साइंटिफिक ऐसे ही मेरे भाषण रखे हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी में, म्यूनिक यूनिवर्सिटी में, फिर वहाँ के बड़े बड़े बिहारों में, जब साइंसदान सब थे.
like you. तो फिर बहुत बातें आइंस्टाइन का एक बात नहीं, पहले तो ये कहूंगा कि भगवान बुद्ध का रॉयल सोसाइटी का एक मोटो है, रॉयल सोसाइटी का एक मोटो है, और उसका मोटो क्या है? नलियस इन वर्बा, नलियस इन वर्बा। तो इसका हिंदी में कैसा होगा? किसी का भी शब्द सत्य मत मानो। इंग्लिश में कैसा होगा? टेक नो वंस वर्ड फॉर इट। हिंदी में कैसे? किसी का भी शब्द सत्य मत मानो, मेरा भी मत मानो। भगवान बुद्ध कहते हैं पंडित का तो मानो ही मत, ये ग्रंथ में लिखा है बोल तो बिल्कुल मानना है ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी मत मानो, मेरा भी मत मानो, किसका भी मत मानो, मैं पढ़ा रहा हूं बोल के मेरा भी मत। क्या भगवान बुद्ध? कालाम को ये भगवान बुद्ध कहते हैं, और इसीलिए उसको उन्होंने कही हुए जो बातें उसको कालाम सूत्र बोलते हैं। So Kalam Sutta is equated to Royal Society's motto. No one's word for it. That means nullius in verba. तो ये nullius in verba को भूल दो। किसी का भी शब्द सत्य मत मानो जब तक वो आपको सत्य नहीं लगता, जब तक वो आप अनुभवते नहीं, जब तक वो अच्छी चीज नहीं, जब तक वो सबकी कल्याण की नहीं। ये भगवान बुद्ध बोलते हैं। और यहाँ मुझे भी मत मानो यदि आपका कल्याण नहीं होता है, तो वो मेरी टीचिंग भी नहीं है। और कर्म कांड ये वगैरह, गॉड, आत्मा, ये तो मानना भगवान बुद्ध के करीब ही नहीं था, पास भी नहीं था कभी। दैट्स व्हाई ही सेड नो आत्मा, एवरीथिंग इज अनित्य वगैरह वगैरह। नाउ कालाम सूत्र में थोड़ी से इसमें बोल देता हूँ, आपको मालूम है लेकिन जिनको मालूम नहीं है, फॉर देम भगवान बुद्ध कहते हैं, यस कालामाज, इट इज प्रॉपर दैट यू हैव डाउट। कालामाज, ये बात अच्छी होगी कि आपके मन में डाउट आ गया और आप मेरे को क्वेश्चन करे, पूछ रहे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं दैट यू हैव परप्लेक्सिटी, फॉर अ डाउट हैज अराइजन इन यू, इन योर माइंड, and that which are doubtful the things for you. तो ये बड़ी अच्छी बात है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि तुम डाउट कर रहे हो हर चीज पर, तो ये बड़ी अच्छी बात है, और डाउट करना बड़ी अच्छी बात है बोलते हैं। नाउ लुक कालामाज, डू नॉट बी लेड बाय रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स पर जाओ मत जाओ, किसी ने कहा है बोल के मत जाओ। ट्रेडिशन पर भी मत जाओ, किसी ने कहा है मेरे जैसे आदमी ने बड़े, फिर भी मत जाओ। डू नॉट बी लेड बाय अथॉरिटी, कि बहुत बड़ा आदमी है, पंडित है, ज्ञानी है, उसकी भी मत सुनो। रिलीजियस टेक्स्ट है उसका भी मत मानो। नॉट बाय मेयर लॉजिक, लॉजिक कहता है बोल के भी मत मानो। इन्फरेंस का भी मत ये करो, इन्फरेंस से भी नहीं मानो। नॉर बाय कंसिडरिंग अपीयरेंसेस, नॉर बाय डिलाइट इन स्पेकुलेटिव ओपिनियंस। आपके जो ओपिनियन है उससे उसके साथ जम रहे, जुड़ रहे, वो भी मत मानो। और आखिरी में कहते हैं बड़ी अच्छी बात कहते हैं, डू नॉट बिलीव इन मी ऑल्सो, डू नॉट बिलीव इन वॉट एवर। देन बाद में क्या कहते हो, उस पर बिलीव करो। काय पर? वेरी इंपॉर्टेंट। बट ओ कालामाज, when you know for yourself that certain things are unwholesome, जब आपको ये मालूम हो जाता है कि ये अकुशल है, ये हमारे काम की बात नहीं है, and it is wrong, it is bad, then give it up, उसको छोड़ दो। कितना इजी बना है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, and when you know kalamas for yourselves that certain things are awesome, कुशल है, अच्छी चीज है, अच्छी बात है, अच्छी है, then accept them, और वो भी अच्छी है बोल के नहीं, तो आपके और सबके कल्याण की होना चाहिए, वो एक्सेप्ट करो। तो ये ग्राउंड भगवान बुद्ध का इतना फ्रीडम दिया है, द ओनली फ्रीडम द लॉर्ड हैज गिवन, बुद्ध हैज गिवन टू यू। सो आइंस्टाइन का मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, एंड देन बाद में आइंस्टाइन कहते हैं, आइंस्टाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ही सेज इफ एवर देयर इज एनी रिलीजन दैट वुड कोप विद मॉडर्न साइंटिफिक नीड्स, इट वुड बी बुद्धिज्म। ऐसा कोई दुनिया में धर्म है तो वो एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, और वो है भगवान बुद्ध का। क्यों? क्योंकि मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया की जो नीड्स है वो पूरा करता है। आई मीन द बुद्धिज्म सैटिस्फाइड ऑल द नीड्स and all the needs of your mind and body and everything. That's what the only dhamma is the dhamma of the Buddha. Buddha never interested that his words are final,
भगवान बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे वर्ड्स फाइनल है. His final advice from his deathbed was, do not accept anything as truth until you taste it. जब तक आप खुद अनुभव नहीं करते तब तक मत विश्वास करो for yourself. आप खुद विश्वास मत करो. Including my own teaching. मेरे ओन टीचिंग के बारे में भी यही अप्लाई करो, यही लॉजिक अप्लाई करो जिसमें आपका दुनिया का सबका भला है. This is scientific spirit. That is why the Buddha is known as the first scientist of the world. इसलिए भगवान बुद्ध को आजकल सारे दुनिया के नोबेल लॉरियट्स और सारे साइंसदान पहला साइंटिस्ट मानते हैं, पहला शास्त्रज्ञ मानते हैं. Of all the fields, not only of physics, chemistry, but mathematics, quantum physics, quantum science, क्या क्या दुनिया का जो नया नया आ रहा है वो उसके पहले साइंटिस्ट ऐसे दुनिया के साइंसदान मानते हैं. And then he finally says, the Buddha further assigns suffering to the cause and effect theory. कार्य कारण के भाव पर जब आते हैं, अनित्य के बारे में जब बोलते हैं भगवान बुद्ध या अनात्मा के बारे में जब बोलते हैं तो पूरा साइंस अभी का सामने आता है, पूरे लॉज सामने आते हैं. फिर एडविन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडविन श्रोडिंगर नाम के एक ऑस्ट्रिया के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, अभी नहीं है, उनको भी नोबेल प्राइज मिला 1933 में. वो कहते हैं बुद्धिज्म के बारे में, कहते हैं, he says about Buddhism, some blood transfusion from the east to the west should go to save the western science from the spiritual anemia. यानी वेस्टर्न साइंस में स्पिरिचुअल एनीमिया इतना आ गया, एनीमिया इतना आ गया कि ईस्टर्न साइंस जो बुद्ध ने कहा है उसमें वो ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, दुनिया आगे आ सकती है. दैट इज व्हाट. फिर डेविड बॉम, अनदर नोबेल लॉरिएट अभी के, ही सेज, अभी भी काम कर रहे वो, ही सेज, he is a Nobel Prize winner. He says meditation actually transforms the mind. यानी ध्यान, समाधि आपका मन, आपकी बुद्धि पूरा बिहेवियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदल देता है. It transforms the consciousness. It transforms the behavior of individual and society. ये डेविड बॉम कहते हैं. मैं ये सब बड़े बड़े लोगों को क्यों ले रहा हूँ कि मेरे जैसे छोटे छोटे लोगों को तो फेंक देंगे आप. फेंक देंगे बोलते एकदम नहीं फेंकेंगे साहब. वो चाय मेरे को अभी भी दिख रही कभी कभी, तो आप ऐसा सोचो कि आप मेरे को चाय पिला रहे हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं पी रहा. ओके, दैट्स ऑल. एंड नाउ देन लास्ट the Buddhist molecular science, atomic science, quantum neuroscience, meditation, mind and quantum mechanics, then and the science of enlightenment, with all this has been talked by the Buddha, has now being taught by the scientists of all the world. दुनिया के सारे साइंसदान एनलाइटनमेंट की भाषा बोलते हैं, बुद्ध की भाषा बोलते हैं. हम बड़े भाग्यवान हैं कि बाबा साहब ने हमको ये दिया है, और बाबा साहब नहीं रहते थे तो हमको ये नहीं मिलता था. तो मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं बाबा साहब का बंदा हूँ, और बुद्ध का तो ज्यादा बंदा हूँ. बंदा बनते जी आवाज इतना ही है, बंदा हूँ. ठीक है, माइनस तो ये कर दिया बंद. ओके, नाउ द लास्ट थिंग दैट आई मस्ट टॉक टू यू इज, आखिरी की बात, ये सारे लॉज, ये सारा साइंस, कौन सा भी साइंस दुनिया का अभी तक का या आने वाला, सब बुद्ध की थ्योरीज को अप्लाई हो सकता है. अब बुद्ध की थ्योरीज बोलते मैंने बड़े सीधे लफ्जों में कहा है, 4 आर्यन ट्रुथ्स, 8 फोल्ड पाथ, मतलब तो 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग जिसमें शील समाधि प्रज्ञा कंसाइज में, देन कम्स दुख, अनित्य, अनात्मा. पूरा भगवान बुद्ध ने ये कितना, एक मिनट की भी बात नहीं, आधे मिनट में सारी दुनिया का ज्ञान आपको कह दिया है. और ऑफ कोर्स उसके इतने वॉल्यूम हो जाते हैं त्रिपिटक कि बाबा साहब ने बोला है कि वो 4700 कुछ तो भी, इससे भी ज्यादा है, मेरे को नंबर नहीं आ रहा उन्होंने क्या कहा, लेकिन 700 से ज्यादा है. तो उनका नटशेल में जो बुद्ध ने साइंटिफिक में कहा है वो सब गाथाएं बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा में लाई है, और बुद्ध की वो गाथाएं भी लाई है जहां से उन्होंने पिकअप की है. फिर वो गाथा अंगुत्तर निकाय से होंगी, अभिधम्म से होंगी, फिर वो गाथा संयुक्त निकाय से होंगी, मध्यम निकाय से होंगी, जो भी निकाय है
उन्होंने निकाल में साइंस में लाई है बाबा साहब ने। और जो जो बुद्ध कहते कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये गाथा मेरी नहीं, वो बाबा साहब ने निकाल दिया और हमको साइंसदान बना दिया। इतना बड़ा साइंसदान बना दिया हम लोगों को, सबको और दुनिया को भी। Everybody, when they speak about Baba Saheb Ambedkar, when they speak about Buddha, they have to speak about the scientific thought of Dr. Ambedkar. This is what the science, this is what the introduction of Buddhism and science is. This is just the introduction. अब मुझे मालूम नहीं कि मैं शायद 1 घंटा तक गया और 1 घंटा और बोल सकता हूँ, लेकिन वो साहब है ना, बड़े प्यार से देखते मेरे तब कभी कभी अपने सोमकोर साहब, लेकिन जब गुस्से में आते हैं ना तो उनकी आंखें ऐसे हो जाती है, तो मेरे को वो आंखें थोड़ी सी बाहर आई हुई दिख रही है। तो मैं जय भीम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। द सेशन इज ओपन, द टॉक इज ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू सर, sirs and all the sirs before me and all my mothers and brothers and sisters, thanks to you all. सबको जय भीम, सबको नमस्ते, सबको नमो बुद्धाय और सबको सब जय भीम। थैंक यू। Sadhu, sadhu, sadhu. It was a really very enlightening talk, Banteji. Particularly, it was a very, very first session, an introduction to relationship between Buddhism and science. So, participants, yeah, please. If you have any sort of question, you can unmute yourself and then ask. Okay, I am seeing some questions from Dr. Ambadas Sahib, Jadhav Sahib. Give example from Buddha's literature. Relate these theories with Buddha's sermons of Dhammapada and other literature. हाँ, Bante मेरी ji? एक छोटी सर जी, हम्म। मेरी एक छोटी किताब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धा एंड हिज धम्मा अ साइंटिफिक एनालिसिस, उसमें ये सारे उत्तर आए हैं। और मैं कभी उस पर अभी बोला तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट द आंसर्स आर गिवन इन दैट बुक, राइट? Okay. Okay. Mr. Prashant Kamble, yeah, you can unmute yourself and then ask your question. नमामि भन्ते। हाँ जी, जय भीम। हाँ, जय भीम। Sir, I wanted to ask you a question. Please. In science, all the ideas that we study are built up on the ideal situation first. We studied gas law, ideal gas law, and then we say that no gas is ideal. We studied light as a wave first, then we said it is not a wave, neither a particle, and today we appreciate its duality. Yes. We first appreciated a particle as a particle, and today we know there is duality. Yes. Every time we see that there is deviation from ideality. No, So hello, sir, if you don't yes, mind. sir. Yes, sir. There is no deviation from classical physics or chemistry or mathematics, okay? Classical physics, chemistry, whatever. What is happening is there is a deviation on our levels of mind. Now, when you see an electron as a particle, our consciousness that time sees it as a particle. That's the play of consciousness, play of mind, not of that particle. We see a particle when your consciousness sees it as a particle. We see it as a waves when our consciousness sees it as a waves. It is both. It is both. This is reality. Particle is reality. Wave is real. Both are real, but both are unreal also. So one is real, the other is non-real. But you have to accept this depends on the elevation of your mind. Okay? Excuse me. Okay. Yeah, go ahead. So physics says that unless we measure, we would never know what is the behavior of a particle. As you said that when we will measure, it will be seen as a particle, then it is a particle. If we are measuring, it is a wave, then it is a wave. Something like that. Something like that. But all the time we see that the Heisenberg uncertainty principle is also putting a limitation on a nature that it will not allow anything to be measured accurately. That is true. Now this non-accuracy comes from non-accurate mind, because our mind is not developed to the level of making an instrument which can measure that non-reality. So we have not been able to make an instrument which can measure the non-real thing. Okay? So a day would come within 20 years. मैं नहीं रहूंगा तब, लेकिन आप रहेंगे, तो आप मेरे को फिर याद करना
मुझे क्या याद करना, भगवान बुद्ध को Yes, याद करना. yes. तो दे विल कम. अभी क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है भगवान? आप मेरे से बात कर रहे हैं, देखो ना, मैंने आपको कभी देखा नहीं, आपने मेरे को देखा नहीं, लेकिन मेरे को आप अभी देख रहे हैं, मैं भी आपको देख सकता हूँ. What is this? Yes. You are there, I am here. A virtual thing is Yeah. becoming real. Reality, yeah. So it is real and not virtual, both together Hmm. working. When I Hmm. see as virtual, it is virtual. When I see it is real, real. So this Hmm. is what the Buddha said. This is the paradox actually. Hmm. But we have Yeah. to accept. But you will be Yeah. able to see the non-real as real when you create an instrument of that kind. When you will be able to measure both at a time, and which cannot happen at a time, right? Okay. Well, Banteji, I was just imagining that whether this non-ideality have allowed it nature to come into existence. Yes, So, it is nature. It is inborn in nature. okay. Nature Yes. sometimes see, nature looks like a tree, and it is not a tree. It is waves. Oh, yes, yes. I am now a human being, a body. But if you see me go to the level of understanding of quantum things, then I'm not my Nothing. Yes. body. आणि Yes. भगवान बुद्धाने म्हटलं, ते नागसेनशी बोलताना त्यावेळेस ते उदाहरण घ्या, मिलिंद प्रश्नामध्ये आलेलं आहे, Yes, sir. की माझं डोकं म्हणजे मी काय, हात म्हणजे मी काय, वगैरे वगैरे. तुम्ही ते होय. वाचलं असेल. Yes, आणि मग yes. असं वेळ होय. होते की मी काहीच राहत नाही. होय. दॅट इज व्हॉट द क्वांटम थिअरी इज. हा, त्यावेळेला अगदी. भगवान बुद्धाने मिलिंद आणि नागसेन सांगतो मिलिंदला, भगवान बुद्धाची अशी थिअरी, दॅट इज क्वांटम फिजिक्स नाव. अगदी अगदी. हे जर अगदी असेल तर मग माझं काही चुकलं नाही. आणि माझंही नाही, माझं हे सगळं तुमचंच आहे, भगवान बुद्धाचं, दादासाहेबांचं. तेच मी मांडत आहे. ओके थँक. अजून काही प्रशांतजी, अजून काही? या नाही सर, नाही. थँक यू. ओके, यू गॉट, आय होप यू गॉट युअर आन्सर. Yes, yes, sir. Yes. Very nice, very nice. Anybody else? Yeah, next question, please. Yeah, go ahead. In Vandame Banteji, in your lecture, there was a mention about caste system in Sri Lanka. Whether caste system exists in Sri Lankan Buddhists too? If yes, व्हेरी मच. we can इथे know. औरंगाबादला मी जेव्हा विद्यार्थी होतो, 16 वर्षाचा आलो मी इथे शिकायला, त्यावेळेला ऑक्सफर्ड मधून शिकून येऊन, म्हणजे श्रीलंकन मग शांती भद्र थेरा, बऱ्याच लोकांनी नाव ऐकलं असेल. शांती भद्र थेरा वॉज अ बुद्धिस्ट मंक इन औरंगाबाद. ही वॉज अ PhD फ्रॉम ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी. त्यांच्या खोलीत मी असा विद्यार्थी होतो की मला खोली दिलेली नव्हती हॉस्टेलची, कारण माझ्याकडे पैसे नव्हते 5 रुपये भरायला. तर मग शांतीभद्राने मला म्हटलं की तू माझ्या खोलीत राहा. पण मग दुसऱ्याच्या खोलीत त्यांनी मला ठेवलं, पण सकाळी मला चहा करून देत जा आणि मी म्हणेल ते माझं काम करत जा, कपडे बिपडे धुवून द्या. मी त्यांचे कपडे धुवायचो, ते मला चहा पाहिजे, आणि मग त्यांची ते हिस्ट्री मी त्यांना विचारली. आणि नंतर मी श्रीलंकेला 1995 US ला 1995 मध्ये गेलो. तेव्हा मी सामने झालो 1995 मध्ये. लक्षात ठेवा, 1995 खूप मागे दूर गेलो. अँड देन आय वॉज अ स्टॉन्च आंबेडकर. त्यावेळेला मी प्राध्यापकच होतो अर्थात 95 मध्ये. तिथे गेल्यावर तिथे जे मुख्य बनते होते ते श्रीलंकन होते. त्यांचं नाव आहे बनते गुणरत्न. फार, आता त्यांचं वय 92 की 95 वर्षाचं आहे. आणि ते ह्या शांतीभद्र थेरोचे क्लासमेट होते. आणि तिथे मी गेल्यावर की म्हणते वंदन केलं वगैरे वगैरे. तर मी म्हटलं की औरंगाबादला अशा आमच्या कॉलेजला शांतीभद्र थेरा नावाचे श्रीलंकेचेच आहेत, पण ते ऑक्सफर्डचे PhD आहेत. अरे मग त्यांनी म्हटलं, अरे डू यू नो, त्यावेळेला माझं नाव सरदार होतं, डू यू नो मिस्टर सरदार. मग माझं नाव, मी 2 दिवसातच भिक्खू म्हणजे सामनेर झालो. डू यू नो मिस्टर आनंदा, डू यू नो सामनेर आनंदा, he was my classmate. But let me tell you one thing, he was a Brahmin. ऐकू येत आहे ना? या मी त्यांच्या भाषेत सांगत आहे, तसंच हळूहळू बोलून. ओके, पण ऐकू येत आहे ना? हो या. आणि ही वॉज अ व्हेरी रिच गाय. गाय म्हणजे गाय नाही आपली, रिच गाय म्हणजे हाताच्या शिंग असलेल्या गायी नाहीत. रिच गाय म्हणजे रिच गाय, मलाही स्वतः रिच गाय म्हणजे मोठा माणूस. सो ही वॉज अ व्हेरी रिच गाय, व्हेरी हँडसम, टॉल. म्हटलं हो, म्हटलं त्यांचा मी चहा बनवून दे, त्यांच्या खोलीत मी राहिलो वगैरे वगैरे. बट ही इज अ नाईस मंक, बट यू नो ही इज अ ब्राह्मीन. And you बनते, how can you say this is a Brahmin? He is a Buddhist monk. No.
only Brahmins become Buddhist monk. They are allowed to become Buddhist monk in Sri Lanka. Mhm. आणि मग नंतर मी 1906 मध्ये 2006 मध्ये पुन्हा दीक्षा घेतली. 2006 मध्ये 4 महिन्याची दीक्षा घेतली सामनेरची. दॅट वॉज गिवन बाय भंते राहुला, अमेरिकन मंक, योगावचार्य राहुला. तर तिथे मी होतो. तर तिथे मला एक श्रीलंकन माणूस भेटला जो क्षत्रिय होता. तो तिथे भिक्खू होता. तो म्हणाला, मी त्याला सहज विचारलं, कारण मी बाबासाहेब आंबेडकरवर आर्टिकल्स लिहायचो. दर महिन्याला ते मॅगझिन निघायचं, तर त्याच्यात माझे आर्टिकल्स कास्ट सिस्टम, डॉक्टर आंबेडकर, बुद्धानिज धम्मा. तर ते मला म्हणाले की डोंट राईट दिस आर्टिकल ऑन कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया बिकॉज आय वॉज इन इंडिया वर्किंग ऑन डॉक्स इन बॉम्बे. आणि मग मी म्हटलं काय, यू आर ऑल मंक्स हिअर? नो नो नो, they are monks but they are all Brahmins. I am the only Kshatriya for the first time they have chosen me. Untouchables ला तिथे अजूनही भिक्खू बनवत नाही. ही मी 2006 ची 2006 ची गोष्ट सांगतो. आणि मी जेव्हा मॉनिस्ट्रीच्या बाहेर आलो तो मॅक्झिमम देवी देवताचे फोटो बुद्ध विहारात. मी तर शॉकच, मला इट वॉज शॉकिंग टू मी, व्हेरी मच शॉकिंग. आणि आता नंतर मी कधी गेलो श्रीलंकेला 2012 मध्ये, येस 12 मध्ये, 16 मध्ये. आता मोठी मॉनिस्ट्री, व्हेरी फेमस मॉनिस्ट्री, फॉरेस्ट मॉनिस्ट्री. बट बाहेर आलो की एक छोटस देऊळ होतं. त्या देवळात तुम्हाला नवल वाटेल, ती कोणत्या देवी असतात ना आपल्याकडे, कुठल्या तरी देवी, महाकाली म्हणजे ती बंगालची, पण दुसऱ्या देवी असतात ना ज्यांना ते अनेक देवी, देवाचे फोटो लावले होते देवींचे. म्हटलं हाऊ के, म्हटलं तुम्ही बुद्धिस्ट आहेत का? दॅट लेडी सेड आय एम अ बुद्धिस्ट. म्हटलं दिस इज ऑल हिंदू गॉड्स. ते म्हणाले येस, व्हॉट की, आय लव्ह दोज गॉड्स अँड वी मोस्टली लव्ह दोज गॉड्स. बुद्ध ऑल्सो व्हेरी मच. लुक, दिस इज अ मूर्ती ऑफ द बुद्धा अँड बिलो बुद्धा आर ऑल गॉड्स. आणि ते दोघांनाही म्हणे मी पूजा करते. सो दिस इज व्हॉट इज देअर. जसं आपले बौद्ध माणसं झाली, म्हणजे तुमच्यासारखे सोडून काही तुम्ही लोक Yeah, it is still there in India also, no? इंडिया ऑल्सो. मग त्यांच्या तर आपल्यात काही फरक नाही असं मला दिसलं. तर मी म्हटलं आपण यांच्यापेक्षा थोडे शून्य का आहोत, पण आपली संख्या जास्त आहे त्यांच्यापेक्षा बौद्ध लोकांची बौद्ध धर्म जाणण्याची. मग माझ्या लक्षात आलं, त्यांना सांगितलं की अनलेस यू लर्न 22 प्रतिज्ञा, तिथल्या लोकांना सांगितलं मी, म्हणते नाही, तुम्ही जोपर्यंत ह्या 22 प्रतिज्ञा शिकत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही रिअल बुद्धिस्ट नाहीत. आणि थायलंडला देखील गणपती, मोठाच्या मोठा गणपती भगवान बुद्ध, बँकॉकला मोठ्या चौकात एवढी मोठी गणपतीची मूर्ती आहे की मी असं पाहत राहिलो, म्हणजे आकाशाकडे, एवढी मोठी मूर्ती. आणि मी प्रश्न विचारला बनतेला की बनते व्हॉट इज दिस? तर म्हणे दिस इज नथिंग. म्हटलं व्हॉट इज नथिंग? दिस इज बिग, बिग गणपती. हाऊ कॅन दिस हॅपन? ते म्हणे पीपल लव्ह दॅट. ठीक आहे, जय भीम. तर तेही हसत होते. जय भीम म्हटलं ना अचानक, मी जय भीम खूप म्हणतो. बनतेला म्हटलं की बनते असं जर असेल तर जय भीम. Any question? Yes, there is caste system in Sri Lanka. Not in Thailand. थायलंड मध्ये दुसऱ्या प्रकारच्या गोष्टी आहेत. विष्णूला अवतार मानतात आणि ते विहारात ठेवतात. अजून काही? Yeah. One next question is from Mr. Sachin Dev. He is asking. ते देवच असल्यामुळे कशाला प्रश्न विचारतात? नाही, देव म्हणजे श्रेष्ठ माणूस. आय एम हॅपी. देव म्हणजे देव माणूस. देव म्हणजे देव माणूस. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देव, दानव, गण ह्याच्याबद्दलची सगळी माहिती, ते सगळे मानव होते, व्हॉल्यूम नंबर 3 मध्ये पेज नंबर 151 152 मध्ये लिहिलेलं आहे त्याच्याबद्दल. या त्यांचा प्रश्न आहे बनतेजी, कॅन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा बी कॉल्ड फिलॉसॉफी सिन्स बुद्धा हिमसेल्फ टोल्ड that his teachings are based on actual experiences? The philosophy can be hypothetical, but the actual experiences cannot be. Can we call Buddha philosophy? You are right, you are right. Now, भगवान बुद्धासमोर जशी व्यक्ती यायचा, मग कधी दार्शनिक यायचे, तशा पद्धतीने विचारायचे, मग तशा पद्धतीने भगवान बुद्ध उत्तर द्यायचे. दॅट बिकेम फिलॉसॉफी. काही लोक जनरल प्रश्न विचारायचे, दॅट बिकम प्रॅक्टिकल फिलॉसॉफी, प्रॅक्टिकल लाईफ. ओके, म्हणजे भगवान बुद्धाचा धम्म जो आहे तो फिलॉसॉफिकली आहे, तो प्रॅक्टिकली आहे, तो क्लासिकली आहे, आणि तो फक्त प्रॅक्टिकलच आहे. पण फिलॉसॉफी जेव्हा म्हणता तर भगवान बुद्धाची फिलॉसॉफी वेग नाही, कर्मकांडाची नाही, देवधर्माची नाही. ती फिलॉसॉफी तुमच्या
जीवनाशी आणि रोज प्रॅक्टिकल जीवनातली धम्मदर्शन आहे ते. येस, फिलॉसॉफी बट धम्मदर्शन, आचरण, आचरण त्याला जोडा, म्हणजे ती फिलॉसॉफी, आचरणाची फिलॉसॉफी भगवान बुद्धाची आहे. आणि फिलॉसॉफी शब्द काढला तरी काही होत नाही, लावला तरी काही होत नाही. आचरण इज मोर इम्पॉर्टंट. करेक्ट, या, दॅट इज व्हेरी ट्रू बंतेजी, या. येस बनतेजी, मी तुम्हालाही बनते म्हटलं, तुमचं काही खरं नाही. पता, who knows what is there in future, नाही नाही, मला माहित आहे ना, पण मी तुम्हाला एवढ्या लवकर नाही होऊ देणार. ओके, एनीबडी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. डॉक्टर प्रेमलता मैडम, आप हिंदी में पूछिए ना, आपको कुछ सवाल पूछना है तो. या हाँ, हिंदी में मेरी हाँ, हिंदी अच्छी है, आपकी जैसी नहीं, नहीं लेकिन बहुत अच्छी अच्छी है बंते जी आपकी हिंदी, या है। अजी बहुत भगवान अच्छी मेरे को गाली मत दो, इतनी अच्छी नहीं। सर मैं मेरे को अभी तो कुछ नहीं पूछना, लेकिन अगले जब नेक्स्ट टाइम हाँ और जी, होंगे मैं आपके और जो है हाँ जी, ज्वाइन करूंगी आपके वेबिनार्स। आपके जी। ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगे। जी जी, आज ये मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मेरी मित्र है डॉक्टर भारती सागर, जी जी, उन्होंने मुझे आपका ये बताया, तो मैंने कहा मैडम आप मुझे भी दीजिएगा, मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगी। ओएनजीसी का प्रोग्राम है जी और जी, मेरे को भी बौद्ध धर्म में रुचि है, जी और क्योंकि एससी से आते हैं, बाबा साहब को बहुत मानते हैं, जी, तो उनका मैं भी जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहूंगी। जी जी, जी जी, इसलिए मैं उन्होंने मुझे फिर दिया कि ये प्रोग्राम हाँ काफी अच्छा होता है। मैंने कहा तो आप मुझे दीजिए, मैं ज्वाइन करना चाहूंगी, अटेंड करना चाहूंगी। जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा भिक्खू आनंद जी का जो उन्होंने बताया साइंस और बौद्ध धर्म के बारे में। तो बेसिकली मेरी भी साइंस की ही पृष्ठभूमि है, मेरा बेसिक साइंस का है, मैंने बीएससी किया हुआ है, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, एंड देन my postgraduate in sociology. Then I am net qualified that I am a sociologist now. तो मैं भी साइंस को ही मानती हूँ। बौद्ध धर्म साइंस के बहुत करीब है, साइंस ही है वो बौद्ध धर्म, बाबा साहब ने इसलिए। बौद्ध धर्म साइंस ही है, करेक्ट जी, और बाबा साहब ने, आपको जी साइंस को जानने वाली है, बाबा साहब को जान रही है। तो एक जी क्वेश्चन जी, पूछो ना मैडम, मेरे को ऐसा लग रहा है आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। नहीं 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 भिक्खू साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे अच्छा लगा आपकी आपने जो देशना दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, ओके शुक्रिया। ओके, थैंक यू और मैडम। सर आगे भी आप मुझे हाँ हाँ, जो है बिल्कुल ज्वाइन, मैं अटेंड करना चाहूंगी आपके इस तरह के प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी, धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हर संडे को धम्मदेशना का प्रोग्राम होता है। जी जी बिल्कुल जी सर जी। और उसमें अभी धन्यवाद। डॉक्टर भारती सागर मैडम तो बाप रे शुरू से ही इस प्रोग्राम में है, और हर संडे को उनका उनका तो पार्टिसिपेशन रहता ही रहता है। वो हर संडे को जो बनते जी विमल बदंत विमल कीर्ति गुणश्री बनते हैं, उन्होंने अगस्त से हम लोग उनके सेशंस ले रहे थे, जी और वो बहुत सारे विषय पर बुद्धिज्म की जो कोर टीचिंग्स है, बाबा साहब का क्या ह्यूमन लिबरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है ना। जी तो ये जी बहुत सारे विषय पे उनकी देशना बहुत वो काफी लोगों को पसंद आई है। हाँ और दूसरा, ये जो जी हमारे जितने पुराने प्रोग्राम्स हैं ना, वो सारे हमारे एक यूट्यूब चैनल में हम लोग अपलोड कर लेते हैं, जी ठीक है जी ना। सर, तो लिंक सर आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिएगा, मैं हाँ वहाँ जाकर आप देखती हूँ, जी क्योंकि मैं इस बारे में और जानना चाहती हूँ, देशना के बारे में, जी, इसलिए मैं आगे ये जो है अटेंड करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। ये मैंने इधर चैट बॉक्स में डाल दिया है, सेवा ओएनजीसी मुंबई हमारा यूट्यूब चैनल है। आज की जी भी देशना जो है डॉक्टर आनंदा बंते जी के द्वारा जो दी गई है, वो भी हम लोग इसमें अपलोड करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, और कोई सवाल है किसी का? थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अगर कोई पूछना है आज के विषय के बारे में तो पूछ सकते हैं, या सर, हाँ जी, डॉक्टर साहेब, इंजिनियर साहेब, हाँ हाँ त्या बंते जी, अंकित हजारे मॅडम ना हाँ मी पाहत आहे, जी जी, तर त्यांना काहीतरी विचारायचं असेल, हो हो जे- मॅडम विचारा. जय भीम मॅडम, तुम्ही अनम्यूट करा आणि विचारा, काही विचारायचं असेल तर, किंवा काही हा बोला जरा. हा हा बोला मॅडम.
मॅडम हा बोला. आणि मी ऐकत आहे सायंटिफिकली तुम्ही देशना खूप सुंदर म्हणजे सर्वांना इंडियामध्ये समजेल अशा लोकांना म्हणजे तुम्ही करतायत. तर मला आज Thank you. क्वेश्चन तर नाही आहे. ज्या पद्धतीने दुसऱ्यांनी पण क्वेश्चन केले तर आन्सर माझे मिळून गेलेले आहेत. ओके ओके फाईन फाईन. Thank you, Tay. Thank you. Thank you. Okay. If there are no more questions, then we'll conclude this today's session. और परुलकर मैडम है? Yeah, she is there, no? Priya madam, are you there? Unmute yourself. So Bhante ji, thanks a lot for sparing your valuable time for us. And it was really wonderful talk today on because this topic is very new to all of us. The correlation between Buddhism and science. Although we are student of science, but yes, there was there was misunderstanding actually. It was no I mean understanding at all, because the relationship between Buddhism and science. But you have thrown some light on this. It was just an introduction to this topic, and next session will be on on other aspects of this, quantum theory and Buddhism. And also one special session will be on uh, the Buddha and his Dhamma. Okay, Dr. Babasaheb Ambedkar, the Buddha and his Dhamma. Okay, a scientific analysis. So we'll conduct another session on this topic. बुद्धा एंड इस धम्म का जो साइंटिफिक एनालिसिस है, जो भंते जी ने जिसके ऊपर एक बुक लिखी है, तो वो हम लोग इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में हम लोग प्लान करेंगे. 3-4 जो मेन जो टॉपिक्स है रिलेटेड टू बुद्धा एंड इस धम्म, रिलेटेड टू बाबा साहेब, रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड साइंस, वो भंते डॉक्टर आनंदा जी से हम लोग सुनेंगे. ठीक है, तो आपका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारा स्पेशल थैंक्स टू साधुवाद बंते जी के लिए कि उन्होंने इतना अच्छे तरीके से ये जो अननोन फील्ड था, जो एक रेयर फील्ड था, उसके बारे में हम सबको ब्रीफली क्यों ना सही, क्योंकि इट वाज वेरी फर्स्ट सेशन और डेफिनेटली इट वाज एन इंट्रोडक्टरी सेशन, नो. तो सारी चीजें इसमें नहीं कवर कर सकते हम लोग. फ्यूचर में हम लोग जो है कोई अगर स्पेसिफिक, अगर कोई आपके भी आप सुझाव दे सकते हैं. आपका कोई सुझाव है इस बारे में, एज फार एज बुद्धिज्म एंड साइंस इज कंसर्न, आप अपना सुझाव दे सकते हैं. तो वो स्पेसिफिक टॉपिक पे हम लोग, जैसे मैंने कहा कि बुद्धा एंड इस धम्मा और इसका साइंटिफिक जो एनालिसिस है, ये स्पेशल एक सेशन हम लोग करने वाले हैं. और जो अंबादास जाधव साहब का जो प्रश्न था, तो उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की धम्म दृष्टि, जो किताब बाबा साहब ने जो भंते जी ने लिखी है, उसमें उनके काफी आंसर उसमें जैसे भंते जी ने बताया उसमें मिलेंगे. तो ये 2-3 टॉपिक है, हम लोग इसको फ्यूचर में हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, आप अपने सजेशन जो है वो दे सकते हैं. और आप क्या लगता है आपको कि इस विषय पे और क्या किस बारे में बात हो, तो हम भंते जी से उस बारे में हम लोग उनको निवेदन कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. एंड बिफोर वी कंक्लूड, सो लेट अस रिसाइट धम्म पालन गाथा. ओके एवरीबॉडी. और इस धम्म पालन गाथा के साथ में ये आज की जो देशना है उसकी समाप्ति होगी. मैं 3-4 लोग जो है हमारे साथी है, वो दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड साथ में रिसाइट कर सकते हैं. मैडम प्रिया परुलकर, या प्लीज गो अहेड. वंदामि भन्ते. सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचेत पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरेत् सुचरितं नतं चरितं चरेत् धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासते यो च अपं
अपि श्रुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवेधमधरो होतियो धम्मं धम्मं न नपमज्जति नथि मे शरणं शरणं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं संघो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। तो इसी के साथ अभी समय आया है बिछड़ने का। तो बाकी इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीक हम लोग और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषतः हमारे आज के जो फैकल्टी है वेनरेबल भिक्खु डॉक्टर आनंदा जी को हम सबकी ओर से बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। वो वैसे ही हमेशा ऐसे ही उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर वो ऐसा ही बना रहे और भी बहुत सारे वो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है इससे बुद्धिज्म साइंस के उन पे वो स्टडी करे और हमारे नॉलेज बढ़ाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। जय भीम। थैंक यू सर, जय भीम।